Welcome back again in the ring theory class. Today we are going to discuss some more important topic from ring theory. Before we proceed further, let us see what we have learned in the last lecture. We learned the definition of ring, examples. So these two things have been covered only so far. On several examples I have given, and some results also I have noted down on how to claim that a ring to be commutative. Let us start with one note that we all know that a ring need not have unity and unity नहीं हो सकती and maybe यूनिट्स भी नहीं हो सकते सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना. यूनिट्स मतलब समझ रहे हैं ना, दोज एलिमेंट्स which have inverse, fine, and also cancellation law. May not hold, फाइन. तो ये तीनों चीजें जो है वो मिस होती हैं एक रिंग में. ऑफ कोर्स कम्यूटेटिव होने की जब हम बात करते हैं, ये आर ए रिंग टू बी कम्यूटेटिव, some conditions we have, some conditions we know. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नोट किया था. तो इसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे. ये जो तीनों पॉइंट्स हम लिखेंगे, यूनिट और यूनिटी और फिर कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड नहीं हो सकता एक रिंग में. और बात कर रहे थे हम लोग कि कम्यूटेटिव होने की, तो इसमें से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स जो है वो देखे थे कि कब वो कम्यूटेटिव होगा. और इसी में एक और एग्जांपल है जिसको मैं अभी नोट कर रहा हूँ. सो एग्जांपल इज दैट प्रूव दैट a ring R is commutative if and only if A square minus B square equals to A plus B, A minus B for all AB belongs to R. So this is one of the simple condition using which we can claim a ring is commutative or not commutative. So proof. So let us assume let R. So R is a ring. Of course, R is R be commutative. R be commutative. Fine. Then कम्यूटेटिव होगा तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग. फाइन. सो हेंस ए प्लस बी, अब हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फाइन.
So because we need to prove this one if and only if. So we have assumed here R is commutative. So now see A plus B and into A minus B. So रिंग है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है, ये हमें पता है. सो इसको हम लिखाएंगे A माइनस टाइम्स ऑफ B एंड प्लस B A माइनस B. फाइन, ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है रिंग की प्रॉपर्टी वो यूज किया हुआ है. फाइन, एंड देन यहाँ जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, सो ये हो जाएगा A into A, it is A square minus A times B plus BA minus B square. Fine. One thing we know here that AB equals to BA. So using this one, if you can write A minus A square minus AB and plus AB minus B square, since AB equals to BA. Fine. So this will cancelled out. ये बचेगा क्या, A square minus B square. तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है. So conversely, let A square minus B square equals to A plus B A minus B. So we have been given this one, और इसकी हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि R कम्यूटेटिव है, that is AB equals to BA. So this implies that A square minus B square equals to, सिमिलर पैटर्न में हम राइट हैंड साइड को स्पेंड करेंगे. So ये हो जाएगा A, जैसे यहाँ पे हमने किया था यहाँ से. So A square minus AB plus BA and minus B square. फाइन. सिमिलर क्वांटिटीज जो है यहाँ पे कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे. एडिटिव, बिकॉज प्लस के साथ ये क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बना रहा है. ठीक है. R प्लस जो है क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ये ध्यान रहे. और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक ग्रुप में जो है कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा. फाइन. तो sometimes राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करके तो ये हो जाएगा 0. फाइन. ऐसे हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ पे 0 आएगा. फाइन. एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस AB प्लस BA, और ये इंप्लाई कर देगा AB इक्वल्स टू BA. ओके. So this is one of the simplest result to claim that a ring is commutative. Fine. इसके अलावा भी और हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि और कौन सी कंडीशन होती है कि R ring R with unity, ring R with unity satisfying xy square equals to x square y square for all xy belongs to R, then R is commutative. फाइन. और एक और रिजल्ट हम लोगों ने देखा था, let R be a ring such that A square equals to A for all A belongs to R, then R is commutative. Fine. So as of now we have three results जिसकी हेल्प से हम प्रूफ कर पाएंगे कि एक रिंग कम्यूटेटिव है या कम्यूटेटिव नहीं है. फाइन. ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं, ये दोनों रिजल्ट्स हैं. ठीक है. सो ये केवल सफिशिएंट कंडीशन देते हैं हमें,
और ये जो हमने लोग अभी प्रूफ किया है, ये वाला रिजल्ट ये हमें जो है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों देता था। इफ एंड अगर ये होल्ड हुआ तो कम्यूटेटिव होगा, अगर कम्यूटेटिव हुआ तो ये होल्ड गारंटीड होगा, ठीक है। और जबकि ये सफिशिएंट कंडीशन देते हैं, इट मींस दैट कि अगर आर कम्यूटेटिव हुआ तो जरूरी नहीं है कि ये होल्ड हो जाए। फाइन, ठीक है। सो दिस इज सफिशिएंट कंडीशन ओनली। अब आगे हम चलते हैं। इसका प्रूफ आपको चाहिए अभी, और आई कैन अपलोड, मैं प्रूफ करके आपको अपलोड कर दूंगा, बिकॉज आगे हम बढ़ते हैं इन दोनों रिजल्ट के प्रूफ, ठीक है ना। मैं सॉल्व करके इसको अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। फाइन, इज इट ओके? यस सर। सो दैट वी कैन सेव द टाइम। फाइन, जो जहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल जरूरत है वहां पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। आगे का टॉपिक जो है उसको सबरिंग, सबरिंग नेक्स्ट टॉपिक है। इट इज जस्ट लाइक सब ग्रुप वी हैव डिस्कस्ड। सो सबरिंग है क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए रिंग R and then we have suppose a subset of R, say S. Okay, so S is a subring if S is itself is a ring with operations of R. Right? So S अगर खुद एक रिंग बन जाए R के ऑपरेशन के अंडर में, so जो ऑपरेशन R के लिए है वही ऑपरेशन S के लिए भी होगा, ठीक ना। तो हम कहेंगे कि R जो है S जो है सबरिंग है किसका? R का। फाइन, as we know in claiming subgroup we have certain conditions, something like that, कि हम लोग कहते थे कि एक तो एक क्लोज होना चाहिए जब हम सब ग्रुप में करते थे, ठीक है ना। ये आप रिकॉल कीजिए इन केस ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। G is a group and S is, if S is a subset of G, fine, then what we say कि S is a subgroup of G if यहाँ पे A B इनवर्स, इसको हम कहते थे बिलोंग्स टू क्या हो जाए? S हो जाए, ठीक है ना। ये वन स्टेप टेस्ट होता था, ध्यान है आपको ना, वन स्टेप टेस्ट। और टू स्टेप टेस्ट क्या होता था? टू स्टेप टेस्ट, इसमें दो चीजें हमें वेरीफाई करनी होती थी, एक तो ए बी बिलोंग्स टू यानी क्लोजर हो, फाइन, और साथ ही बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एस, फाइन, ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। सो ये दोनों चीजें होती थी। और यही चीज अगर ये तो मल्टीप्लिकेटिव के बारे में था, अगर हम एडिटिव ग्रुप के बारे में बात करें तो यही हो जाता था ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना। और ये क्या होता था, इसको हम कह देंगे अगर बी जो है एस में बिलोंग कर रहा है, अगर ये इम्प्लाई कर दे नेगेटिव बी भी यानी एडिटिव यूनिवर्स भी बिलोंग कर जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। सो ये तो था रिकैप जो हम लोगों ने ग्रुप में हम लोग करते थे, ठीक है। सो अब रिंग के केस में देखिए, यहाँ पे जो क्लेम करना है हमें वो ये कि सबरिंग टेस्ट क्या है। ए नॉन एम्प्टी सेट और ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of R is a subring if S is closed under subtraction and multiplication. S is closed under subtraction and multiplication. Fine. That is A minus B and AB are in S. Fine. So अब इसकी हेल्प से since जो है हमारा ये सपोज ये रिंग है R और ये इसका सबसेट है, यहाँ पे S है, ठीक है। सो इसमें कंडीशन दी हुई है कि S जो है क्या अगर फॉलो करे A माइनस बी बिलोंग्स टू S हो जाए एंड A B बिलोंग्स टू S हो जाए, फाइन। सो हमें क्या चाहिए S को रिंग बनाने के लिए? S अगर रिंग हो जाए
और सबसेट तो है ही इसका, तो इसका सब रिंग हो जाएगा उसी ऑपरेशन के अंडर में। फाइन। तो एक तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले इजी चीज देखते हैं हम, क्लोजर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आर रिंग है तो यहाँ पे भी एसोसिएटिविटी तो होगी होगी, ठीक, एसोसिएटिविटी ये होगी यहाँ पे, यानी सेमी रिंग तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये एस जो है आर का सबसेट है। फाइन। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड होगा, ठीक, दोनों बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिकॉज एस इज ए सबसेट ऑफ आर। सो यहाँ पे सारी चीजें तो हो गई, एक तो ये सेमी ग्रुप हो गया और साथ ही दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये बात कर रहे हैं कि क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। फाइन। तो अब इसके लिए एक तो R जो है R प्लस, देखिए R प्लस ये क्या होगा, R प्लस एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है ना। सो कोई भी S के एलिमेंट होंगे वो कमिट कर रहे होंगे पक्का, ठीक है, दोनों कमिट कर रहे होंगे। और साथ ही साथ इसको अगर हम रिकॉल करेंगे कि सब ग्रुप होने के लिए, सो सब ग्रुप होने के लिए अगर एडिटिव ग्रुप है तो टेस्ट क्या होगा उसके लिए, वन स्टेप टेस्ट, A माइनस बी बिलोंग्स टू S, यही तो होगा। एनीवन? यस सर। फाइन ना। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये इंप्लाई ये कर देगा कि S जो है क्या है, एक S प्लस एक क्या है, अबेलियन ग्रुप है, सब ग्रुप है, साथ ही साथ अबेलियन है। क्यों? क्योंकि अबेलियन इसलिए क्योंकि R प्लस अबेलियन है, ठीक है ना। यस सर। सिंस R प्लस इज अबेलियन, सो S में एड R के हैं तो ये भी अबेलियन हो जाएगा, S प्लस इज अबेलियन सब ग्रुप by one step test of subgroups, ठीक है। सो ये मैंने प्रॉपर तरीके से तो लिखा नहीं है इसका प्रूफ, बट थिंग इज दैट कि वी नीड टू नो, ये डायरेक्टली इंप्लाई कर देगा जो वहां पे हम करते आए ग्रुप थ्योरी में, और यहाँ पे हेरिडेटरी हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि एस के एलिमेंट जो है वो आर के एलिमेंट है तो एसोसिएटिविटी होगी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड होगा, बिकॉज आर एक रिंग है ही। फाइन। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, मिस्ड और हॉट। ठीक है, सब रिंग के बाद जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। एग्जांपल 8 ही है, हाँ इसके पहले और बाकी पहले एग्जांपल्स रहे होंगे, ठीक है ना। सो लेट अस सी। ओके, सो सब रिंग के एग्जांपल्स कुछ है, जैसे 0 एंड R सब रिंग ऑफ एनी रिंग R, 0 इज कॉल्ड अ ट्रिवियल सब रिंग, ठीक है ना। तो कोई भी रिंग R होगा तो एडिटिव ग्रुप तो होगा, ये अबेलियन ग्रुप होगा, तो इसमें R में 0 भी बिलोंग कर रहा होगा। फाइन। सो R जो है, R तो खुद एक सब रिंग अपना होगा ही होगा, खुद का सबसेट होता है, ठीक है ना, और 0 भी होगा। सो ये 0 जो होगा इसको हम ट्रिवियल सब रिंग कहते हैं, ठीक है। आती है बात एग्जाम्पल नंबर 9, अगर हम देखें इसमें तो 0 to 4 is a subring of Z6, the integer modulo 6। तो Z6 जो है हमारा, Z6 आप जानते हैं इसमें जो एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से होंगे, और ऑपरेशन जो होगा यहाँ पे दो ऑपरेशंस होंगे Z6 के साथ में, एडिशन
एडिशन को हम ऐसे सपोज ऐसे हम लिखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ठीक है। तो ये भी एक रिंग होगा, हम लोगों ने देखा था क्लासेस में, रिंग होगा, और साथ ही साथ इसमें से कुछ इसका एक सबसेट लिया हुआ है, सपोज एस लिया, इसमें 0, 2 और 4, ठीक है। सो ये भी जो है एस अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में एक क्या बनाएगा, सब रिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें दो कंडीशंस हमें देखनी है। दो कंडीशंस देखने में क्या है कि एक तो हम एडिशन में सब्ट्रैक्शन वाली बात देख सकते हैं, और दूसरे में क्या देख सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों वेरीफाई करके देखेंगे। और नोट दैट अब एक चीज यहाँ से ध्यान देना आप शुरू करेंगे कि 1 जो है यूनिटी किस में है, Z6 में है, लेकिन 4 जो है यूनिटी किस में है, इसमें है। फाइन। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो सब ग्रुप में होता था तो वहां पे हम देखते थे कि एक जैसा हो जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है चूंकि एडिशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन भी है, तो यूनिटी यहाँ पे इसके अंडर में तो एक ग्रुप बना नहीं रहा होता है, ठीक है ना। आर जो है मल्टीप्लिकेशन के अंडर में नेसेसरी जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप ही बनाए, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। तो इसलिए यहाँ पे यूनिटी चेंज हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना। तो छोटे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, आप देखिए क्वेश्चंस कि सपोज आर एक रिंग है और एस इसका सब रिंग है, ठीक है ना। सो यूनिटी ऑफ एस एंड आर सेम, ठीक है ना। सो सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना, दे आर नॉट सेम, दे नीड नॉट बी सेम। फाइन। ये चीज ध्यान देना, ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं Z6 में। फाइन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 में है, ये भी सेट होगा इंटीजर्स के लिए। दोनों चीजें आप वेरीफाई करते हैं, ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्शन में आप देख ही पा रहे हैं डायरेक्ट, और मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही होगा। अब उसमें ऑड और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें इंटीजर्स हैं, तो इसमें भी आ जाएंगे वो, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको हमने देखा था, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स को देखा था लास्ट लेक्चर में। ये भी एक रिंग बनाता है ना। तो ये भी एक, और ये जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम बात करते हैं तो हम सारे वो नंबर्स लेते हैं, z वो सारे नंबर्स लेते हैं x प्लस आई वाई, जहाँ पे x और y कहाँ के बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का z आई जो है ये सबसेट है। फाइन। ये सबसेट है, और दोनों के ऑपरेशन यूजुअल ऑपरेशन के अंडर में रिंग बनाता है, उसलिए हम लोगों ने देखा था, तो उसका एक सब रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आर बी ए रिंग ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, एग्जांपल नंबर 12, वेरिएबल अंडर पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। The subset S of function whose graph passes through the origin forms a subring। तो ये भी हो जाता है। एंड देन एग्जांपल नंबर 13 में हम देखेंगे तो ये सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस इज अ सबरिंग ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर Z। ये सारी चीजें थोड़ा आप देखेंगे, वेरीफाई करेंगे इसमें तो हो। अब बात हम करते हैं वो एक ऐसे पॉइंट की जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये किया था कि रिंग में यूनिटी का होना जरूरी नहीं है, और कैंसिलेशन का होना जरूरी नहीं, कैंसिलेशन लॉ होल्ड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब चीजों से हम करते हैं। तो हियर सम डिस्क्रिप्शन आर देयर, अगर हम देखें तो algebraic properties of integers on an abstract setting. A ring is not appropriate abstraction of integers, ठीक है ना। However, for too much is lost in this process। अब क्या चीजें लॉस्ट हो जाती हैं? The two obvious properties, एक तो कम्यूटेटिविटी, ठीक है ना, existence of unity, fine,
और इसेंशियल फीचर जो है वो क्या है, वो कैंसिलेशन लॉ। ये तीनों चीजें वहां पे जरूरी नहीं है कि रहे ही रहे। फाइन। तो अब ये कब आएंगी, ये प्रॉपर्टीज कब आएंगी, उसके लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। अब उस नए कॉन्सेप्ट में है कि वो एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम जीरो डिवाइजर्स कहते हैं, और फिर उसकी हेल्प से हम इंटीग्रल डोमेन डिफाइन करते हैं। फाइन। सो जीरो डिवाइजर्स है क्या? जीरो डिवाइजर्स क्या है? जीरो डिवाइजर्स कोई भी रिंग आर, ठीक है ना, और एक एलिमेंट ए है, ठीक है ना। ए को हम जीरो डिवाइजर तब कहेंगे, फाइन, नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर such that there is a non zero element b। और अब यहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट b is not zero such that a b equals to zero। फाइन। सो एक b जीरो नहीं है और ए भी जीरो नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो फिर हम ए को कहेंगे जीरो डिवाइजर। ए को क्या कहेंगे, जीरो डिवाइजर। ध्यान रहे यहाँ पे टर्म यूज किया गया है कम्यूटेटिव रिंग का, ठीक है। सो अगर ए बी इक्वल्स टू जीरो है और कम्यूटेटिव है तो बी ए इक्वल्स टू भी जीरो होगा, ए इक्वल्स टू भी जीरो होगा, क्योंकि इसको कम्यूटेटिव कहा गया है, ठीक है ना। तो ए बी इसेंशियली इक्वल्स टू क्या होगा, बी होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ए अगर जीरो डिवाइजर है तो उसमें अगर बी अगर ऐसा एग्जिस्ट कर जाता तो बी भी एक जीरो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। यूजुअली हमें ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं कि मैं दो जो एलिमेंट जीरो है नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो है। तो वन में थिंक ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो एक तो मैट्रिसेस में आता ही आता है कि जो उनका दोनों एलिमेंट्स जो हैं, दो मैट्रिसेस जीरो ना हो और उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाए, ठीक है। तो वहां पे तो आता ही आता है। और इसके अलावा और भी है जो हम एग्जांपल्स दें। तो एग्जांपल में एक तो द रिंग, हाँ यस यस यस, M2 of all matrices, ठीक है ना। इसको हम कंसिडर करते हैं, इसमें a इक्वल्स टू 0 1 0 और 0, ठीक है ना। ये इक्वल्स टू 0 नहीं है। और b लेते हैं हम, तो फर्स्ट रो में 1 1 एंड 0 0, और ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो ए भी हम अगर फाइंड करेंगे तो ये 0 0 0 0 आएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो what we say here, a and b are zero divisors, okay, a and b are zero divisors. So this is one. Number two, हम बात करें तो Z6 की, अगर हम बात करें Z6, तो Z6 में जो एलिमेंट्स हमारे 0 1 2 3 4 एंड 5, इसमें हम देखें तो एलिमेंट्स की बात अगर हम करें, ये रिंग होगा, है ना, Z6 अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। डोंट बी गेट कंफ्यूज कि कुछ बार ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों सेम है, ठीक है, नोटेशन पे डिपेंड करता है। सो यहाँ दो एलिमेंट्स हैं, टू में किससे मल्टीप्लाई करें कि जीरो हो जाए, नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढिए, एनीवन। 3। वेरी गुड, 2 3, ठीक है।
और फिर 6 मॉडुलो 6 में करेंगे तो 6 आएगा एंड 6 इज 0 हियर। फाइन। ऐसे 2 3 में 2 से इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। फाइन। सो यहाँ पे जो, और इसके अलावा भी और कोई एलिमेंट क्या इसमें आएगा? नो सर। नहीं है, ठीक है ना। फाइन। सो 0 डिवाइजर्स जो है ये 2 और 3 आर 0 डिवाइजर्स। अभी आप लोगों में से जिसने बताया था कि 3, आप अपना एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। फाइन। सो यहाँ पे एक एग्जांपल और था। अब हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को कि 0 डिवाइजर्स होते क्या है, ठीक है ना। फाइन। 0 डिवाइजर्स वे नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, ठीक है ना। सो उसको हम क्या कहते हैं? 0 डिवाइजर कहते हैं। सो इंटीग्रल डोमेन है क्या? दिस इज वन ऑफ द important element of ring theory. An integral domain is a commutative ring with unity and no zero divisor. Fine. यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, जीरो डिवाइजर की बात कर रहे थे, हमने केवल कम्यूटेटिव लिया था, यूनिटी की बात नहीं करी थी। फाइन। यूनिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है ना। सो इंटीग्रल डोमेन में कौन सी चीज जुड़ जाती है? एक तो कम्यूटेटिविटी यहाँ का आता है, ठीक है ना, और साथ में कोई जीरो और यूनिटी हो, फाइन, और नो जीरो डिवाइजर। सो एन इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग with unity and no zero divisor. मीन्स क्या है कि इंटीग्रल डोमेन में कोई ऐसा ना हो एलिमेंट, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन में, इंटीग्रल डोमेन क्या हो गया? कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव प्लस यूनिटी प्लस ये कंडीशन है, ये सारी चीजें, ठीक है, नो जीरो। ओके। सो जब हम जीरो डिवाइजर फाइंड करते हैं तो उस समय कम्यूटेटिव की बात करते हैं हम, ठीक है ना। कम्यूटेटिव हो और कोई जीरो डिवाइजर तब हम डिफाइन करते हैं। ओके। सो नो जीरो डिवाइजर का मतलब कि यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा कोई नॉन जीरो एलिमेंट ना हो जिनका किसी नॉन जीरो एलिमेंट से प्रोडक्ट क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो, ठीक है। अब इसमें जैसे हम करें कि मैथमेटिकली अगर हम रखना चाहें, सो ए बी इंप्लाइज 0, ए बी इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज आइदर, इसको मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, ठीक है ना, आइदर ए इज 0 और बी इज 0, ठीक है ना। ओके। और ए इज नॉट 0, बी इज नॉट 0 implies a b is not 0, all a b belongs to R. फाइन। सो ये जीरो डिवाइजर ना होने का मतलब ये है, अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो उसमें से कोई एक को 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। फाइन। या फिर दोनों जीरो नॉन जीरो हो तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो हो, दोनों इक्विवेलेंट है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम और देख सकते हैं। ये आपकी बुक से ही है, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर 0 तभी होंगे, प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब उसमें से कोई एक 0 है ना, अदरवाइज नहीं होगा। और पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो इसमें यूनिटी होगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी पॉलिनोमियल उस दिन हम लोगों ने देखा था, है ना। और इसमें यूनिटी भी होता है। यूनिटी क्या होता है इसमें बेटा? कम्यूटेटिव तो होता ही है, यूनिटी 1 ही होता है ना। 1 को आप लिखते हैं कैसा? 1 + 0 टाइम्स ऑफ i। फाइन। ओके।
और रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स में विद इंटीजर कोफिशिएंट, इसमें हम कोई पॉलिनोमियल एक x लिया और इसको 1 ले लिया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट। तो ये भी यूनिटी हो गया। साथ ही दो पॉलिनोमियल को अगर जीरो हो रहा प्रोडक्ट, तो एक को जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये भी इंटीग्रल डोमेन है। ये जब जीरो होगा तभी जब ए और बी दोनों जीरो हो, यानी ए प्लस बी रूट 2 ये जीरो हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जेड पी इंटीजर मॉडुलो पी में ये भी एक इंटीग्रल डोमेन बनेगा, फाइन। और यूनिटी तो होगी इसमें 1, ओके। सो इसे एग्जांपल नंबर 7 है, इसे एग्जांपल नंबर 6 है, जेड एन इंटीजर मॉडुलो एन इज नॉट इंटीग्रल डोमेन व्हेन n इज नॉट प्राइम। आपने पढ़ा होगा पहले ही, ठीक है ना। तो जब प्राइम यहाँ पे प्राइम होता है तभी होता है, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है, ओके। ये बात करें सेट रिंग M2Z, ठीक है ना, और इंटीजर्स इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ये क्यों नहीं होगा? एनी आइडिया? एनी आइडिया? सर क्योंकि इसमें ए मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका वैल्यू 0 आ सकता है। सर अभी हमने देखा 0 आ सकता है। लोगों ने देखा ना, यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, ये एग्जांपल, ठीक है ना। सो यहाँ इसके पास जीरो डिवाइजर्स हैं, होते हैं, है ना, जीरो डिवाइजर्स होते हैं इसके पास। हमें क्या चाहिए? हमें नॉन जीरो। और इसके अलावा और भी कोई लॉजिक है इसमें? एक तो ये है कि कम्यूटेटिव भी नहीं होता है ना, कम्यूटेटिव भी तो होना चाहिए। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, फाइन। ना तो कम्यूटेटिव है और इसके पास जीरो डिवाइजर्स हैं, तो जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए, फाइन। अब एक जो मेन था जिसके लिए हम लोगों ने इंटीग्रल डोमेन को, ठीक है ना, उसमें पहला जो उससे रिलेटेड रिजल्ट है कैंसिलेशन लॉ हमें मिल रहा है, ठीक है ना। सो ए बी सी बिलोंग्स टू एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए इज नॉट ए बी इक्वल्स टू ए सी देन बी इक्वल्स सी, फाइन। सो ऑफ कोर्स प्रूफ इज वेरी ट्रिवियल। ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो ये इंप्लाई कर देगा ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए हम कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस सी, फाइन, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये इंटीग्रल डोमेन है, ध्यान रहे, ठीक है ना, इंटीग्रल डोमेन है। सो इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं होंगे, है ना। इंटीग्रल डोमेन है तो कोई जीरो डिवाइजर नहीं होंगे। और इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है? ए बी इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये इंप्लाई करेगा आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे ए तो 0 है नहीं, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? बी माइनस सी हैज टू बी 0। तो ये 0 हो गया, बी इक्वल्स टू सी हो गया, फाइन, क्लियर है ना, ओके। हेलो सर हम और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में 6, अब इसमें क्वेश्चन है ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है? दैट इज क्वेश्चन। नो सर। नहीं है? नो सर। क्यों? नो सर। सर जीरो डिवाइजर्स हैं इसमें। जीरो डिवाइजर्स है सर सर। अभी हमने 0 डिवाइड 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। तो इसमें 2 3 आर जीरो डिवाइजर्स है ना। तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। और देखते हैं हम
Z5 ये इंटीग्रल डोमेन है। यस सर। यस सर। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था यहाँ पे, ये है ना, ये देखेंगे आप। सो वन में गिव प्रूफ, जनरल प्रूफ, बट इन जनरल ZP जब P प्राइम है, ठीक है ना, P इज प्राइम, तो ये जो है इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ओके, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। और सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीग्रल डोमेन है। सर यस सर। इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है। As soon as we have AB equals to 0, ये इम्प्लाई करेगा either A is 0, A equals to 0 और B equals to 0. So इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। फाइन। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए, और बाकी जो है अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। फाइन। और आप लोगों को अगर कोई कहीं पे डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कुछ, ठीक है ना, अपने डाउट्स को। आज का डिस्कशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, ठीक है ना।